Assalamu alaikum, dear students. Today we have another question in congruency. The question is L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. Show that triangle ABC, this triangle is congruent CDA, this triangle. We have to congruent these two lines. How we can congruent these two lines? First of all, we are given L and M, which are parallel to each other, and then another pair of parallel lines P and Q. These are also parallel to each other. And here in this figure, AC intersecting L and M. We write given L and M are two parallel lines. Also, P and Q are parallel to each other. Parallel to each other. Both the lines intersects. Now we write to prove this triangle, its name is ABC, triangle ABC congruent triangle CDA. नेक्स्ट स्टेप प्रूफ हम लिखेंगे I have already told you if two lines are parallel and another line intersects these two lines, then alternate interior angles are equal, corresponding angles are equal, and angles on the same side of the transversal are supplementary. ये मैंने आपसे पहले ही कहा है. तो यहाँ पर दो ट्रायंगल्स हम लेते हैं, इनमें से हम देखते हैं L पैरेलल M, क्योंकि दो लाइन्स हैं L और M. These are parallel to each other, and another line which is called a transversal. That means AC is a transversal. L parallel M and AC is a transversal. Therefore, अब देखते हैं यहाँ पे L parallel M and this line which is called a transversal intersects, then this angle is equal to this angle. If we write here angle 1 and here angle 2, that means angle 1 and angle 2 are equal. Therefore, angle 1 is equal to angle 2. Alternate interior angles. यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं L parallel M, this is a transversal, that means this angle is equal to this angle. Angle 3 is equal to angle 4. Alternate interior angles. Similarly, angle 1 is equal to angle 2. These are also alternate interior angles. क्यों? क्योंकि
P and Q, these two lines are also parallel. P parallel Q and AC is a transversal. तब एंगल 1 और एंगल 2 बनता है, यानी यहाँ पे एंगल 1 इस ट्रायंगल में एंगल 2, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये भी बराबर होंगे. सिमिलरली एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. नाउ फ्रॉम triangle ABC, this triangle ABC, and now from triangles ABC and CDA, अब यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. ये हमने ऊपर प्रूव किया, यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड अबोव. अब इसके बाद लिखेंगे एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3. ये भी हमने प्रूव किया ऊपर, प्रूव्ड अबोव. अब इसके बाद एक और साइड जो AC है, ये इस ट्रायंगल में भी आता है, इस ट्रायंगल में भी आता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि AC जो है ये कॉमन है. AC इज इक्वल टू AC, यहाँ पे सामने लिखेंगे कॉमन. Therefore triangles are congruent. Therefore triangle ABC congruent triangle CDA by ASA rule. ASA rule, तो ASA ये क्राइटेरिया है जिसके ज़रिए हमने इन दो ट्रायंगलों को कॉन्ग्रेंट किया बाय SAS रूल. इस तरह ये सवाल कंप्लीट हुआ. इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं. मान लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है, AB is a line segment. AB is a line segment. P is its midpoint. Is its midpoint. P is its midpoint. D and E are the points on the same side of AB. Same side of AB, such that angle BAD is equal to angle ABE and angle EPA is equal to angle DPB. Show that, हमें बताना है ट्रायंगल DAP congruent ट्रायंगल EBP. नेक्स्ट हमें बताना है AD इज इक्वल टू BE. ये हमें प्रूव करना है. अब चूंकि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में फिगर बनाई गई है, हम खुद भी बना सकते हैं. ये AB एक लाइन सेगमेंट है, P इसका एक मिड पॉइंट है. AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट. इसका मतलब ये हुआ AP जो है BP के बराबर है. अब यहाँ पर D एंड E आर द मिड पॉइंट्स. अगर यहाँ पर हम लिखेंगे D ये है और यहाँ पर E लिखेंगे, दीज आर टू पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB. अब यहाँ से हम ज्वाइन करेंगे पॉइंट D. मान लिया यहाँ पर ये D है, हमने ज्वाइन किया. इसके बाद ये भी हम ज्वाइन करेंगे. अब यहाँ E है, E को B से हम मिलाएंगे और E को P से मिलाएंगे.
अब देखते हैं, यहाँ पर ए बी एक लाइन सेगमेंट है। हम लिखेंगे गिवन ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, ए बी इज ए लाइन segment and P is its midpoint. P is its midpoint such that angle BAD, अब यहां पर देखिए BAD, इसका मतलब ये एंगल ए BAD कह सकते हैं या PAD, एक ही बात है, क्योंकि P लाइज ऑन AB, एंगल सेम ही होगा। BAD दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल ABE, इसका मतलब ये ABE, ये एंगल यहाँ पर एंगल B, ये आपस में बराबर हैं। एंड ऑल्सो एंगल EPA इज इक्वल टू, यानी EPA, ये वाला एंगल EPA इज इक्वल टू DPB, ये यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। EPA इज इक्वल टू एंगल DPB, यहां तक हमें गिवन था। अब लिखेंगे हम टू प्रूव। क्वेश्चन में दिया हुआ है AB इज a line segment, P is its midpoint, D and E are the midpoints on the same side of AB such that BAD is equal to AB and EPA is equal to DPB. Show that हो गया हमारा to prove. Triangle DAP congruent triangle EPB, एक। अब दूसरा पॉइंट हमें बताना है, क्या AD की लंबाई BE की लंबाई के बराबर है। अब हम लिखेंगे प्रूफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे जो हमें गिवन था, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। तो यहां पर हमें ये एंगल जो है, ये कौन सा एंगल बनता है, EPA, हम यहां पे लिखेंगे एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB, एंगल DPB सामने लिखेंगे गिवन। अब यहां पर हम ऐड करेंगे, एडिंग ये वाला एंगल यहां से यहां तक, इसकी मेजरमेंट हमें पता नहीं है, लेकिन ये इसकी मेजरमेंट हम इसको भी ऐड करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे। तब लिखेंगे एडिंग एंगल EPD, पूरा इसका नाम आएगा EPD, एडिंग एंगल EPD ऑन बोथ साइड्स। अगर यहां पे हम लिखेंगे फर्स्ट, तब लिखेंगे ऑन साइड्स ऑफ फर्स्ट। तो लिखेंगे ऐसे EPA प्लस एंगल EPD इज इक्वल टू एंगल DPB प्लस एंगल EPD। तो ये पूरा एंगल जो बनेगा वो क्या एंगल बनेगा, यानी DPA या कह सकते हैं हम APD। तो ये एंगल APD के बराबर आएगा, इसका नाम पूरा होगा, यानी ये एंगल और ये एंगल जब मिलाएंगे इसका पूरा नाम APD बनेगा। तो मैंने लिखा, और इन दो एंगलों की मेजरमेंट APD के बराबर होगी, तो इसका पूरा नाम हम लिखेंगे APD इज इक्वल टू एंगल B। अब ये दो एंगल हैं, यानी दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तो इसका पूरा नाम क्या आएगा, BPD, BPE आएगा, BPE। अब हो गया एक पॉइंट। अब हम लिखेंगे नाउ फ्रॉम ट्रायंगुलर,
या हम ऐसे लिखेंगे बी पी डी, मैंने लिखा बी पी डी, ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये इसको ऐड किया गया, तो हम इसका पूरा नाम लिखेंगे ई पी बी। ई पी बी पूरा नाम आएगा ई पी बी, या बी पी ई, वो भी कह सकते हैं हम, बी पी ई या ई पी, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ फ्रॉम ट्रायंगल्स, जो हमें कॉन्ग्रेंट करने हैं, DAP and ट्रायंगल EPB। यहां पर पहले लिखेंगे APD, यानी DAP, DAP, इसमें ये वाला एंगल जो हमें अभी प्रूव किया, इसका पूरा नाम APD इज इक्वल, अब ये वाला EPB भी लिख सकते हैं या BPE भी लिख सकते हैं। एंगल EPB ये हमने प्रूव किया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं EPB या BPE, चूँकि बीच वाला जहाँ पे एंगल बनता है, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रूव्ड। एक चीज़, अब चूंकि यहाँ पर एंगल ए और एंगल बी आपस में मतलब गिवन था, यानी ये हमें गिवन था, ये आपस में बराबर हैं, तो इसका पूरा नाम क्या है? BAD, BAD, या हम लिखेंगे PAD, एक ही बात है। या हम लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमें क्या है? गिवन। दो चीज़ें। अब चूंकि यहाँ पर ये P जो था ये मिड पॉइंट ऑफ AB है, इसका मतलब ये हुआ AP और BP आपस में बराबर है। AP इज इक्वल टू BP, बिकॉज P इज द मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। Therefore triangle DAP congruent triangle EBP बाय किसके ज़रिए? क्योंकि दो एंगल्स और एक साइड, यहाँ हम लिखेंगे ASA रूल। जब ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ये AD का कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है B, वो बराबर होगा। Hence AD is equal to BE, proved. Thank you.